प्रणाम। नया वर्ष शुभ हो। हमारे सारे संकल्पों की पूर्ति हो। और जो मार्ग हमने चुना है साधना का, बस उसी मार्ग पर हम चलते रहे, यही प्रार्थना चेतना के चरणों में। आज से अपने आप को हील करने की शुरुआत करेंगे। 21 दिन। So today is the first day of New Year, and we start our program, I Heal Myself. See, the most important thing to understand is, though we know this, whole life is a receiving process. We live what we receive. So there is nothing to complain and blame. We are responsible for what we are receiving. And whatever we receive, that reflects, manifests. But some areas in the body are blocked. There are layers of the past, and that is how we do take Reiki, but still it doesn't work because of the layers. The energy doesn't enter the body, and again, body equal to life. Body and mind is one package, and the reflection or the mirror image is life. So whether it is present life or past life, whatever I have received is my life. The most powerful thing in Reiki system is that when we take Reiki, these layers of past, they dissolve, and slowly we come into present, and then we receive the most appropriate, whatever is appropriate for the present moment. Reiki herself is appropriateness. The way Guru is appropriateness. Reiki doesn't have mind. She's just appropriate. Exactly like how the little baby grows in mother's womb, how the little baby knows how to suck the milk
from mother's breast, how the milk comes into the breast, this itself is such a big miracle for the baby. And the milk comes only till the baby sucks. If baby stops sucking the milk from mother's breast, the milk vanishes. What else can be more appropriate? Like the plants, like the air, like the natural instinct which animals have. Srishti. I always feel that समुंदर कैसे अपनी सीमा में रहता है. अगर समुंदर का किसी दिन मन हुआ कि भाई मुझे तो जाकर जमीन से मिलना है, तो क्या होगा? कौन बचेगा? संसार में कोई बच सकता है इस समुंदर के सामने? कितना विशाल है वो, और जमीन कितनी थोड़ी सी है. बट समुंदर अपनी जगह रहता है. क्यों? कैसे? Appropriateness. When we surrender to any god or any religion, I mean, it can be Gurudwara, it can be Jesus, can be God, can be Devi. Basically, we surrender to the appropriateness. And exactly that is our intention today, to receive the appropriateness. And we will begin this. First position. One palm on the back of third eye, and with another palm we are going to take all leg points for 3 minutes. That is feet sole, one feet sole for 3 minutes, another feet sole for 3 minutes, one knee for 3 minutes, another knee for 3 minutes. And the intention is, I choose to take appropriate actions in my life. So we begin. One palm on back of the third eye chakra, one palm on right feet sole. Draw all the symbols on both the points. On back of the third eye and on the foot sole, right foot sole.
Slowly go to the left foot sole. Do not remove the palm on the back third eye chakra. Again, draw all the symbols on both the points. Once on back third eye chakra and once on left foot sole. Chant the intention. I choose to take the actions which are appropriate for me. Now, in the same way, we go to knees. Fear. Fear is stored in the knees. And there is nothing like fear basically. It is just some memory, something has happened in the past, and we still carry it. My most favorite example is if we we were mouse, हम किसी जन्म में चूहा थे, and still we carry the fear of the चूहा. Now imagine how are we going to live our life? So that is how we have some funny fears. Many fears we don't even know, but they are there and they restrict our actions, our thinking, and they block our life. So we start with knees. So one palm, same on back of the third eye chakra, draw all the symbols there and chant the intention. I receive what is appropriate for me to receive in the present moment. Then one palm on the right knee, draw all the symbols, chant same sentence.
Next point, do not remove the palm which is on the back third eye chakra. Only draw all the symbols there again and again say, I choose to receive what is appropriate for me to receive in the present moment. And another palm on the left knee. Draw all the symbols, say same sentence. You can always change the palms because for such a long time to keep one palm will be difficult. So there is nothing like right and left. Both the palms are tuned, so you can change. Next position. One palm on one side of crown chakra and another palm on another side of the crown chakra. Don't touch the center of the head. Draw all the symbols
at both the places and request the crown chakra. Please support. Please help. I choose to receive what is appropriate for me to receive in this birth. Next position, eyes. दोनों आंखें, दोनों हथेलियां दो आंखों पर कुछ इस तरह से रखिए कि थर्ड आई भी कवर हो जाए। वास्तव में आंखें आत्मा की खिड़कियां हैं। आत्मा आंखों के द्वारा देखती है दुनिया को। लेकिन हमारी आंखों पर इतने लेयर्स आए हैं इंटरप्रिटेशन के कि हमको सत्य दिखाई नहीं देता है। जैसे मेरे सामने इस समय मेरी अलमारी है और उसको मैंने जैसा मैं चाहती हूं वैसा कलर किया है, तो मुझे वो अच्छी लगती है। लेकिन रियलिटी सिर्फ इतनी है कि वो एक अलमारी है। मैंने उसको ऐसा बनाया जो मुझे अच्छा लगता है, और कल को अगर वो वैसी नहीं रही तो मुझे बहुत दुख होगा। ये गेम है।
अच्छा लगना और वैसा ना होने पर दुख होना। ये गेम है, ये हम खेल रहे हैं और उसमें बेचारी आत्मा, उसकी समझ में ही नहीं आ रहा है कि भाई हम यहाँ आए किस लिए हैं। यहाँ न कर्म है, न कर्म पूर्ण करने की बात है, कर्म मल्टीप्लाई हो रहा है, लोक संख्या बढ़ती जा रही है, मेस बढ़ता जा रहा है, स्ट्रगल है, फ्रस्ट्रेशन है, टॉर्चर है, हिंसा है। अगर फिल्में देखे तो कितनी भयंकर फिल्में हैं। तो फिल्में अर्थात समाज का जो दृष्टिकोण है, जो अप्रोच है, बस उसकी मिरर इमेज है। सो जो हम देखते हैं वो सत्य नहीं है, वो हमारा इंटरप्रिटेशन है। हम किसी भी बात का कैसा भी इंटरप्रिटेशन करते रहते हैं और ये इंटरप्रिटेशन बेस्ड है ऑन द पास्ट लाइफ। मतलब हमको लग रहा है कि हमारी आंखें जो सामने है वो देख रही है, लेकिन ऐसा है ही नहीं। हमारी आंखें इंटरप्रिटेशंस के आधार पर देख रही है। सच कहा जाए तो हम अंधे हो चुके हैं। So now we go to Reiki. Draw all the symbols on 3 points. दोनों आंखें और थर्ड आई चक्र। 3 बार सिंबल्स ड्रॉ करें। जैसे ही ड्रॉ करें उन्हें रिक्वेस्ट करें, मुझे सपोर्ट करो कि मैं प्रेजेंट में रहूं, मुझे प्रेजेंट दिखाई दे, मुझे अपना रोल दिखाई दे।
Next position, back of the head. Both the palms, back of the head. Upper area is present life. The memories of present life, and lower area is memories of past life. So draw symbols on both the places and request them help me to be in the present. Next position,
back of the head, both the palms, back of the head, upper area is present life, the memories of present life, and lower area is memories of past life. So draw symbols on both the places and request them help me to be in the present. See, we know this that actually the chakras are on the spine.
And chakra is a space, just a space. And perhaps it is round. Just because all these Rishi Munis, they say that it is round, so we accept that yes, it is round. And few chakras, they have some shape also, like flowers, like lotus. So the job of these chakras are, from back they receive energy, and from front they make it available to the world. We know this. So this is not a new thing for you. But we make it available, इसका मतलब ये नहीं कि सारी दुनिया को वो एनर्जी मिलती है. जो भी सामने आता है और रिसीव करता है, उसी को वो एनर्जी मिलती है, बिकॉज एनर्जी इज ड्रॉन, एनर्जी इज रिसीव्ड. एनर्जी कोई वस्तु नहीं है कि उठा के दे दी. मैं चाहती हूं कि आप जिंदगी के इस सत्य को समझें, जो मैं रेकी सिस्टम में आने के बाद समझ पाई हूं और अक्सर भूल जाती हूं. मैंने ये दिया, ये ईगो है, ऐसा कुछ है नहीं. अगर सामने वाला वो उसको एक्सेप्ट ना करे तो आप क्या करोगे? और अक्सर ये होता है और हम दुखी होते हैं. सो ये जिंदगी का बहुत बड़ा सत्य है कि हम वी कैन जस्ट मेक इट अवेलेबल और चुप रहो. जिसको आना है वो आएगा और बराबर लेकर जाएगा. हमारा जॉब वो नहीं है कि कौन आया, किसने लिया. कई बार तो ये होगा कि हम जिसको देना चाहते हैं वो आएगा ही नहीं सामने, और हम जिसको नहीं चाहते हैं वो आके चेतना लेके जाएगा. अब इस पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है. अब यहां पर हमको फिर एप्रोप्रिएटनेस पर भरोसा करना चाहिए. नॉट अपने माइंड पे भरोसा नहीं करना है. यहाँ एप्रोप्रिएटनेस पर ही भरोसा करना चाहिए कि भाई जो भी सामने आया और जिसने भी चेतना ग्रहण की, हम तो इस बात को समझेंगे भी नहीं, समझ नहीं पाएंगे कि किसने आके चेतना ग्रहण की. सो जिसने भी चेतना ग्रहण की, whoever came and received the energy, yes, that was most appropriate, because लेना देना उसी के साथ था. मुझे ये अच्छा लगता है और इसलिए मैं इसी को रेकी देना चाहती हूं. ये तो माइंड है भाई. एंड चेतना herself is appropriateness. ये बहुत बड़ी बात है. और हम इस बात को जानते हैं, लेकिन इसके अनुसार जीना बड़ा मुश्किल है. मैं मानती हूँ, मैं खुद भी नहीं जी पाती हूँ इस तरह से, और बार बार अपने आप को समझाती हूँ, नहीं यार ऐसा नहीं है, क्यों असत्य के रास्ते पे चलना. लेकिन ये मैं समझा समझा कर हारती हूँ. सो टुडेज पॉइंट्स. सो आज का पॉइंट है, एक हाथ बेस ऑफ द स्पाइन पर, and draw all the symbols and say, I choose appropriateness in my life. दूसरा हाथ on the front third eye chakra, और उससे रिक्वेस्ट करो, प्लीज सपोर्ट मी in choosing appropriateness, and draw all the symbols.
Next position, ears. Draw all the symbols on both the ears and have the intention. I choose to listen to what will help me in my growth and completion. Next position, neck, गर्दन. दोनों हथेलियां गर्दन पर. Both the palms on neck. Draw all the symbols and have the intention. I learn from my life. होता ये है that because of lack of knowledge में हम रह नहीं पाते. We know, but वहाँ रह नहीं पाते. और इसीलिए जिंदगी हमारे लिए बर्डन है. रिलेशनशिप्स हमारे लिए बर्डन है. हमारा कर्तव्य, हमारी ड्यूटी हमारे लिए बर्डन है. और इसीलिए सारी जिंदगी खुशी की तलाश में निकल जाती है.
इसलिए ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है एंड आई रिक्वेस्ट यू कि जब भी समय मिले दिन भर में ये पॉइंट बार बार लो। ये पॉइंट हम नहीं लेते हैं ज़्यादा, सो इसको बार बार लेना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट पोजीशन, शोल्डर्स। अब सेम पॉइंट है और यहाँ सेम दर्द है। शोल्डर्स पर हम सारी जिंदगी का, सारी दुनिया का भार है। वी फील इट इज अ बर्डन, life is burden, and that is how always there is a tension here or there is a pain here. So देखो ना, अगर कोई दुखी हो तो हम उसके कंधे पे हाथ रखते हैं। सो ये कितनी नेचुरल बात है कि अगर उसको सांत्वना देनी हो या कंसोल करना हो तो हम उसके कंधे पे हाथ रखते हैं और धीरे धीरे थपथपाते हैं। सो यहाँ पर ये स्टोर किया जाता है सारी थकान, सारा टेंशन, सारा दुख। सो ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये भी दिन में 3-4 बार कम से कम लेना चाहिए एंड यू विल फील फ्रेश। सो ड्रॉ ऑल द सिंबल्स ऑन बोथ द शोल्डर्स। अब यहाँ पर रिक्वेस्ट ये करनी है, इंटेंशन ये लेना है दैट आई remain
in the knowledge that I am here to complete my karma, and every moment which I am living is my karma. It is not a burden. Next position, lung tips. Now, I'm not very clear about this point, but lungs and breath, they are connected. So breath का अर्थ है, सांस का अर्थ है जो हम बाहर से, सृष्टि से, निसर्ग से प्राण भीतर लेते हैं. इसका अर्थ ये है कि हमारा रिसीविंग फ्रॉम द वर्ल्ड. अब कहीं न कहीं इसका रिश्ता है कि हमारा इस संसार से क्या रिश्ता है. अगर ये अहंकार हो कि जाओ मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो नेचुरली हम प्रॉपरली ब्रीथ नहीं करेंगे. अगर रेजिस्टेंस हो कि क्या ये दुनिया है, क्यों इससे लेना देना रखता, हम प्रॉपरली ब्रीथ नहीं करेंगे. आई हेट दिस वर्ल्ड, हम प्रॉपरली ब्रीथ नहीं करेंगे. सो सीधी सी बात है कि हम इस बात को समझ ही नहीं पाते हैं कि क्या हम ठीक से टोटली, फुल्ली, कंप्लीटली 100% ब्रीथ करते हैं, और इस ब्रीथ करने का अर्थ क्या है. क्या विचित्र जीव हैं हम कि अपनी जिंदगी के लिए हम ढंग से सांस भी नहीं लेते. क्या लेना देना दुनिया से, दुनिया जैसी भी है, भाई हमको जीना है तो प्राणवायु की तो आवश्यकता है कि नहीं. अब इसका संबंध प्रेजेंट दुनिया से भी है और उससे कई गुना ज्यादा हमारे पास्ट लाइफ से है. वो इम्प्रेशन इतना गहरा है कि आज भी हम उसी नजर से आज की दुनिया को परखते रहते हैं. बार बार और हमेशा जो याद आता है वो है गुरुदेव का वाक्य, एक्सेप्ट पीपल एंड सिचुएशंस एज दे आर. ये ब्रह्म वाक्य है. अगर ये हम 50% भी प्रैक्टिस कर सके ना जिंदगी में, तो भी हमारे कुछ जन्म सुधर जाएंगे. ओके, सो वी गो टू द नेक्स्ट पॉइंट, and that is
लंग टिप्स, और उसका अर्थ हमने अब समझ लिया है, तो इस अर्थ के साथ प्रैक्टिस करेंगे। लंग टिप्स, ड्रॉ all the symbols on both the lung tips and have the intention, I receive energy and prana from the world. Next position, थाइमस थायराइड ग्लैंड्स पर एक हाथ रखिए और एक हाथ एग्जैक्टली उसके पीछे, मतलब गर्दन से थोड़ा सा नीचे, लिटिल बिलो द नेक, and one on the thymus thyroid gland. Now, this back thymus thyroid is very important, and we don't pay attention to this. Again, we carry lots of burden here. बड़ा बोझ है यहाँ पर इस पॉइंट पर, इसलिए draw all the symbols on both the places, back thymus thyroid and front thymus thyroid.
and request, yeah, intend. I allow myself to be totally in present and with my purpose of completing the karma. Next position, front and back heart chakra at the same time. मतलब एक हाथ फ्रंट हार्ट पे, एक हाथ बैक हार्ट चक्र पे. Draw all the symbols and request the heart chakra, please support me in completing my life purpose. Heart chakra is the Atma. और ये आत्मा सब कुछ देखती रहती है. वास्तव में वो निर्विकार है, उसे कोई इमोशंस नहीं है, क्योंकि आत्मा अर्थात चेतना, चेतना का अपना माइंड तो है नहीं. लेकिन शरीर में प्रवेश करने के बाद वो भी इस दुनियावासी हो जाती है या संसारी हो जाती है. द वे वी आर. और अपना लाइफ पर्पस वो खुद ही भूलने लगती है. बस इसीलिए साधना की आवश्यकता है, इसीलिए गुरु की आवश्यकता है. I always prefer this position. Focus. Focus on front heart chakra and back heart chakra as if you're breathing.
Next position, front and back solar plexus at the same time. Draw all the symbols on both the positions. अब सोलार प्लेक्सिस ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और कई रंगों का चक्र है। यहाँ विजडम है, यहाँ एंगर है, यहाँ कंपटीशन है, जेलसी है, प्रूविंग है, पावर इशू है। अब पास्ट लाइफ का जो भी इम्प्रेशन स्ट्रॉन्ग है वो ट्रिगर होता है। मतलब ये कि बैक सोलार प्लेक्सिस से जब आप एनर्जी रिसीव करते हो तब जो भी स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन है वो मैनिफेस्ट होता है, उसकी मिरर इमेज जिंदगी है। अब इसलिए मेहनत करके हमें विजडम में रहना है एंड नॉट इन द पावर इश्यू और एंगर और प्रूविंग। अब इसके लिए मेहनत ये करनी है कि दिमाग को ट्रेनिंग देनी पड़ती है। इसके लिए चिंतन चाहिए, इसके मनन चाहिए, इसके लिए कंटिन्यूअसली ऑब्जर्वेशन चाहिए। क्या है मेरे थॉट्स, वेयर आई एम, व्हाट आई एम थिंकिंग, हाउ आई एम रिएक्टिंग। सच कहा जाए तो मैं ये मानती हूँ कि ये साधना है। और फिर एनर्जी आप जहां भी हो उसको मैनिफेस्ट करती है। अगर आप प्रेम में हो तो जिंदगी में प्रेम ही प्रेम होगा। अगर आप एंगर में हो तो जिंदगी में एंगर ही एंगर होगा। बात बात पे यू विल गेट एंग्री। सो एनर्जी खुद कुछ नहीं करती है, जो इमोशन है वो मैनिफेस्ट होता है बिकॉज यू आर रिसीविंग एनर्जी।
Last position, front and back hara at the same time. एक हाथ फ्रंट हारा पर, नेवल के नीचे, एक हाथ बैक हारा पर, एग्जैक्टली कमर का सेंटर. ड्रॉ ऑल द सिंबल्स. अब यहाँ पर ढेर सारे इमोशंस हैं एंड पीस है, बट वी आर नेवर पीसफुल because we are all the time emotional. Hardly we are peaceful. So symbol draw करके request करो इस चक्र को, please allow me to be with myself. And with this, we complete our sadhana. We will continue this for 11 days. And then we will change the process. So, be on the group, don't leave the group. Pranam, Jai Hind.